Praise God that we are able to meet again in this Zoom like this. परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर एक बार हम जूम पर इस प्रकार से मिल पाए। For quite some time, the burden that I have in my heart is I want to share with you. कुछ समय से जो बोझ मेरे हृदय में रहा है उसी को मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। That's about the new covenant. और वो है नई वाचा के बारे में। Yeah, the new covenant has got major two parts. और नई वाचा के दो मुख्य हिस्से या भाग है। The one part is prophesied by Jeremiah chapter 32, 31. और एक जो है वो यिर्मयाह के 31 अध्याय में जिसकी भविष्यवाणी की गई है। Let us turn to Jeremiah chapter 31. आइए हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय verses 33 and 34. उसका 33 और 34 वचन। Yeah. So I'll read it. Then you can read it in Hindi, dear brother. Jeremiah chapter 31, verses 33 and 34. यिर्मयाह 31 उसका 33 और 34 वचन। But this is the covenant which I made with their fathers, covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and on their heart I will write it, and I will be their God, and they shall be my people. They will not teach again each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord. For they will all know me, from the least of them to the greatest of them, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। Through the sin of one man, disobedience came to all. एक व्यक्ति के पाप के द्वारा सभी के अंदर अनाज्ञाकारिता आई। That we read in the book of Romans chapter 5. और इसे हम रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं। Through one man's disobedience, sin has entered into all. एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता के द्वारा सब में पाप ने प्रवेश किया। Or we can say, through one man, he has exposed his heart to the devil. या हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य ने अपने हृदय को शैतान के सामने प्रकट कर दिया। He has closed his heart to God. उसने अपना हृदय परमेश्वर के लिए बंद कर दिया। He has hardened his heart towards God. उसने परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को कठोर कर लिया। Or we can say, whatever God has written in his heart, he has wiped it away. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो भी परमेश्वर ने उसके हृदय में लिखा उसने वो पोंछ दिया। Because he exposed his heart to devil. क्योंकि उसने अपने हृदय को शैतान के सामने प्रकट कर दिया। And Satan started writing in the heart of Adam and Eve. और आदम और हवा के हृदय में शैतान ने लिखना आरंभ कर दिया। And they are our forefathers. और वे हमारे पुरखे हैं। It is like, see, we all have DNA. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम सब का एक डीएनए होता है। And lot of codings are there in the DNA. और उस डीएनए के अंदर कई कोडिंग्स ऐसे होते हैं। See, when I go to my relatives, they easily find out that I am son of my father. जब मैं अपने रिश्तेदारों के घर में जाता हूं तो बड़े आसानी से वो पहचान पाते हैं कि मैं अपने पिता का पुत्र हूं। How are they able to find out? कैसे वो जान पाते हैं? Because some facial expressions and something is there which tells that I am so and so. क्योंकि मेरे मुख के हाव भाव या मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो उन्हें बताता है कि मैं एक इस प्रकार का ये व्यक्ति हूं। Yeah, I find one boy was walking in और our church. मैंने पाया कि हमारे कलीसिया में एक लड़का चल रहा था। And he was walking exactly like his dad. और बिल्कुल हूबहू अपने पापा के तरह ही वो चल रहा था। I was really seeing that and enjoying. और मैं वो देखकर बड़ा आनंद मुझे हो रहा था। What makes him walk like that? कैसे वो अपने पापा की तरह चल पाता है? It's the coding in the gene. और वो उसके जीन्स के अंदर जो कोडिंग है उसके द्वारा। Something is written and it is passed on from generation to generation. और उसके अंदर कुछ है जो लिखा गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी में वो आगे दिया जा रहा है। Nose is like that, and the type of nose, type of ears, and facial expression. उसका नाक ऐसा होगा, उसके कान ऐसे होंगे, इस प्रकार का कान, इस प्रकार के हाव भाव, सब कुछ।
facial features, और उसके चेहरे पर जो भी चीजें दिखेंगी वो सब, they all tell that I belong to this race or this genealogy. और ये सब बताते हैं कि मैं इस वंश का हूं या इस वंशावली से मैं आता हूं। Because of this gene, you can tell even somebody by seeing that which state they are from. और कभी कभी इन जीन्स की वजह से जो हमारे अंदर होते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि कोई व्यक्ति किस राष्ट्र से है, Which country they are from. किस देश से वे हैं। Yeah. And among our close relatives, we can say which family they are from. और हमारे नजदीकी रिश्तेदारों में हम पहचान सकते हैं कि वो किस परिवार से है, Because it is passed on from generation to generation. क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी तक वो आगे बढ़ता जाता है। Yeah. Just 1 minute, brother. I'll just put on the switch and come. Yeah. Yeah. I'm sorry. Yeah. So, generation after generation, we know the gene, something is written and it is expressed in the life. और पीढ़ी दर पीढ़ी हम जानते हैं कि उस जीन में कुछ ना कुछ लिखा गया है, और वो आगे के जीवन में वो आगे की यहाँ दे दिया जाता है। The same way, Satan has written in the heart of our forefathers, Adam and Eve. बिल्कुल वैसे ही शैतान ने हमारे जो पुरखे थे उनके हृदय में, आदम और हवा के हृदय में ये लिखा, And thus their hearts became corrupted. और उसके द्वारा उनके हृदय जो है वो भ्रष्ट हो गए, And that has become his nature. और वो उसका स्वभाव बन गया। See, whatever is written in our gene or DNA, the coding, that is becoming our nature. In the way, the spiritual heart, whatever devil has written, it has become the nature. और जो हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में लिखा जाता है वही हमारा स्वभाव बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही आत्मिक तौर पर भी जो भी शैतान ने हमारे उस हृदय में लिख दिया वही हमारा स्वभाव बन जाता है। So we ask somebody, are you from the Adamic race? Then you are a sinner. और फिर हम किसी से प्रश्न करते हैं, क्या तुम आदम की वंशावली से हो क्या? फिर तुम पापी हो। And the nature is expressed, manifested. और वो जो स्वभाव है वो प्रकट होने लगता है। And everybody, generation after generation, generation after generation, are carrying a heart where devil has written. और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोग हैं जो अपने अंदर वही लेके घूम रहे हैं जो शैतान ने उनके हृदय में लिखा है। And do you know what pen the devil was using to write? और क्या आप जानते हो किस पेन का इस्तेमाल शैतान ने किया लिखने के लिए? Paul is writing that. और पौलुस उसे लिखता है। Turn to 1 Corinthians chapter 15. और मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थ उसका 15 अध्याय। Yeah, 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थ उसका 15, Yeah, verses 55 and 56. उसका 55 और 56 वचन। Yeah. O death, where is thy sting? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? O hell, where is your victory? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? So far, hell was experiencing a victory because of the pen called death, which has got a nib. और मृत्यु नामक उस पेन की वजह से, जिसके एक निब है, उसके वजह से नरक की विजय हो रही थी। And the tip of the pen is sin. और उस पेन का जो टिप है या निब है वो पाप है। If you have a blue ink pen, when you write, you get blue lines. और जब आपके पास ब्लू शाही का कोई पेन होता है नीले रंग का, तो आप जब भी लिखोगे उसमें नीला रंग ही दिखेगा। When somebody has got a red ink pen, when you write, you get all red lines. और जब आपके पास लाल शाही का पेन होगा तो जो भी लिखोगे आपको लाल रंग में ही दिखेगा। The same way, this devil has got a pen which is called death, and the nib is sin. So when he writes, it all comes sin. और शैतान के पास एक पेन है जिसका नाम मृत्यु है, और उसकी नोक जो है वो पाप है, इसलिए जब भी वो लिखता है तो पाप ही आता है। But when Jesus came, through his death, he has destroyed the tip of the pen. पर जब यीशु आया तो यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा उस पेन की जो नोक है उसी का नाश कर दिया। Yeah, that's why in the 57th verse we read, now thanks be unto God who gives victory through Jesus Christ our Lord. और इसलिए उसी अध्याय के 57 वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 55th verse says, oh death, where is thy sting? 55 वचन कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? You know the scorpion. और आप उस स्कॉर्पियन को, उस बिच्छू को जानते हो। Scorpion will hold our leg with its hook, and then it has got a sting in the tail. It will sting. और वो जो बिच्छू होता है वो हमारे पाँव को उसके उस
उन पंजों से मानो पकड़ लेता है और उसके अंदर फिर एक डंक होता है The sting is a very small, sharp thing, like an injection. और वो जो डंक होता है वो बहुत ही एक छोटा बट बहुत ही नोकीला ऐसा चीज होता है, बिल्कुल एक इंजेक्शन की तरह। When it stings you, it stings. Death is written in your body. और जब वो आपको वो डंक मारता है तो मृत्यु आपके शरीर में लिखी जाती है। Yeah. Similarly, when the snake stings, the poison, the death is injected into your body. बिल्कुल वैसे ही जब सांप डंक मारता है तो वो जो जहर है वो आपके शरीर में आ जाता है। But in the scorpion, suppose you cut the sting and remove the sting, पर अगर उस बिच्छू के डंक को ही आप काट दिया जाए तो उसको then it is not a poisonous uh, being. You can take it and play with it. फिर उसके वो जहरीला कोई जीव नहीं है, उसको लेकर आप खेल भी सकते हो। In the same way, when the poisonous teeth is removed from the snake, you can play with it. There's no danger. बिल्कुल वैसे ही जब सांप के अंदर से वो जो जहरीली चीजें निकाल दी जाती है उसको लेकर आप खेल भी सकते हो, उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। The same way, through Jesus Christ, death on the cross, the sting of the devil is removed. बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु की वजह से जो शैतान का डंक है वही निकाल दिया गया है। It is now the devil is like a snake whose head is crushed. अब शैतान एक ऐसे सांप के जैसा है जिसका सिर कुचला गया है। Head is crushed means the teeth which has got poison, it is also removed. सिर Crushed. सिर कुचला जाने का क्या मतलब है कि जिस दांत के अंदर वो जहर था उसे उसे भी कुचल दिया गया है। So this removal of sting of death happened only when Jesus Christ died and rose again. और मृत्यु के डंक का निकाला जाना केवल तभी हुआ जब यीशु मसीह उस क्रूस पर मरा और वो फिर एक बार जी उठा। Then we read another verse in Hebrews chapter 2. और फिर एक और वचन हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसके दूसरे अध्याय में। Hebrews chapter 2 and verse 15. इब्रानियों 2 उसका 15 वचन। Yeah, I'll read it in English and then brother can read it in Hindi. Hebrews chapter 2 and verse 15. इब्रानियों 2:15। Yeah. And so that he may free those who through fear of death were subject to slavery all their lives. और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। I think if we read 14th and 15th verses together, you'll understand. अगर मुझे लगता है अगर हम 14 और 15 वचन एक साथ पढ़े तब आपको ये समझ आएगा। Therefore, since the children share in the flesh and blood, he himself likewise also partook of the same, that through the death he might render powerless him who had the power of death, that is the devil. इसलिए 14 वचन इब्रानियों 2:14, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Yeah. See, some big officer is sitting on a table कोई बड़ा अफसर जब किसी मेज पर बैठा होता है and he has got a greening pen और उसके पास एक हरे स्याही का एक पेन होता है and important documents you are going to sign. और महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिन पर आपको उसके हस्ताक्षर लेने हैं। Might be we say he has got another 15 minutes to hold that post. After 15 minutes, he is removed from that post or he retires. और सोचकर देखिए उसको उस ओहदे पर केवल और 15 मिनट ही वो उस पोस्ट पर है, 15 मिनट बाद या तो वो निकाल दिया जाएगा या तो उसको वो वहां से रिटायर हो जाएगा। In the 15 minutes, he wanted to sign some important documents. पर उन 15 मिनटों में वो बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना चाहता है। So he has everything, every document is typed, it is kept ready on the table. और इसलिए वो सारे अपने दस्तावेज को तैयार करके टाइप करके अपने मेज पर तैयार रखता है। He takes a greening pen. वो एक हरे स्याही का पेन लेता है। He wants to sign. वो उस पर हस्ताक्षर करना चाहता है। But there he finds that the nib is broken. Somebody has taken a cutting plier and broken the nib. और वहां उसे मालूम पड़ता है कि उसकी जो नोक है उसके पेन की वो नोक ही तोड़ दी गई है, किसी ने एक प्लायर लेकर उसे काट दिया या तोड़ दिया है। And nearby no green pen is available. और आसपास में कोई भी हरे रंग का वो हरे स्याही का जो पेन है वो उपलब्ध नहीं है। So that last 15 minutes, he has become powerless officer. और आखिरी 15 मिनट के लिए वो
बिना किसी सामर्थ के एक अवसर है। Yeah, that is the meaning. Rendered powerless. और वही मतलब है जब यहाँ लिखा है कि शैतान को निकम्मा कर दिया। The same way, Jesus, through his death, has broken the nib or the sharp sting of the death which was used by Satan. और बिल्कुल वैसे ही यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा जो शैतान जिस कलम के उस निब का इस्तेमाल कर रहा था, वो जो बड़ा नोकीला निब था जो मृत्यु था, उसे तोड़ दिया। Yeah. So that's what Jesus has did. That's why we see, we teach that the devil became powerless. और यही यीशु ने किया, इसी वजह से हम सिखाते हैं कि शैतान जो है वो निकम्मा हो गया, उसका सामर्थ निकाल लिया गया। So now we come back to Jeremiah chapter 31. अब हम फिर एक बार लौट आएंगे यिर्मयाह उसके 31 अध्याय में। Yeah, we read the verse. हमने इस वचन को पढ़ा। Yeah, I read Jeremiah 31 and verse 33. यिर्मयाह 31 उसका 33 वचन। Yeah. So already devil has written something. पहले से ही शैतान ने कुछ वहां लिख दिया है। Now God has to write something. अब परमेश्वर को कुछ लिखना होगा। You are giving a slate or a blackboard to somebody. और आप अगर किसी को एक ब्लैक बोर्ड देते हो या कोई आप पार्टी उसे देते हो तो Sometimes I go to a class to teach the students. और कभी-कभी मैं कक्षा में जाता हूँ विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए। And the previous teacher has left the board uncleaned. So much is written. और मेरे पहले जो अध्यापक वहां पढ़ा रहे थे उन्होंने उस बोर्ड को साफ नहीं किया, उस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। If I am a sensible teacher, what I would do first? अगर मैं एक समझदार शिक्षक होता तो मैं पहले क्या करता? I will wipe the board very cleanly. मैं उस बोर्ड को बहुत अच्छे से पोंछ लेता। Then I will stand somewhere and see whether anything is still appearing on the board, and then I will wipe it very clearly. फिर मैं थोड़ा पीछे जाकर फिर एक बार देखता कि और कुछ रह गया है, कुछ दिख रहा है। अगर कुछ दिखता तो फिर एक बार और अच्छे से साफ करता। Then I start writing. फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। Then students are able to see what I read, what I write, and what I teach. फिर विद्यार्थी देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या सिखा रहा हूं। So here in Jeremiah chapter 31, और यहाँ God यिर्मयाह उसके 31 अध्याय में I will remove all the iniquities and I will remember their sins no more. और परमेश्वर कहता है मैं उनके सारे अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। That is justification. ये है धर्मी ठहराया जाना, Removing the sin. उस पाप को निकालना। Why he wants to remove the sin? क्यों वो उस पाप को निकालना चाहता है? Because God wants a clean board where he can write. क्योंकि परमेश्वर एक साफ बोर्ड को चाहता है जहां वो लिख सके। Yeah, without being cleansed, God will not write something. शुद्ध किए जाए बिना परमेश्वर कुछ लिखेगा नहीं। So when we come to Jesus, the first step is that all our sins are dealt with. और जब हम यीशु के पास आते हैं पहला कदम यही होता है कि हमारे सारे पाप जो है उससे परमेश्वर निपटता है। The sins and iniquities and the guilt formed because of that, it has made our board very unclean. हमारे पाप, हमारे अधर्म और उसके वजह से जो अपराधीपन का एक भावना हमारे अंदर है उसने हमारे बोर्ड को बहुत ज्यादा अशुद्ध कर दिया है। So God wipes it first. और सबसे पहले तो परमेश्वर उसे पोंछ लेता है। And then he says, I will write my laws in their mind. और फिर वो कहता है कि मैं अपने नियमों को उनके मन में लिखूंगा। Yeah, I will put my laws in their mind and I will write my laws in their heart. मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। What is the result? और इसका परिणाम क्या होता है? The result is in 34th verse. और उसका परिणाम 34वें वचन में होता है। Nobody need to say, no God, no God. किसी को भी ये कहने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को जानो। You will have a desire to know God. आपके अंदर एक इच्छा आ जाएगी परमेश्वर को जानने की। You will have a desire to hear the word of God. आपके अंदर एक इच्छा आएगी परमेश्वर के वचन को सुनने की। My dear brother, my dear sister, has it happened to you any time? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, क्या ये कभी आपके साथ हुआ है क्या? If not, we have a doubt whether you have really come to God or not. अगर नहीं तो हमें ये शक, ये संदेह है कि आप वाकई परमेश्वर के पास आए हो या नहीं। Nobody need to tell, go to church, go to the people of God, hear the word of God, or read the word of God. किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं कि कलीसिया जाओ, परमेश्वर के लोगों से मिलो, परमेश्वर के वचन को सुनो या संदेशों को सुनो। Why the desire comes? क्यों वो इच्छा आती है? Because God has written something in our heart. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय में कुछ लिख दिया है। He has put something in our mind. उसने कुछ हमारे मन में डाला है। So we want to find out who is God. और हम ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कौन है। A related verse is found in Romans chapter 12 and verse 2.
और इससे ही एक संबंधित या जुड़ा हुआ वचन रोमियो 12 उसके दूसरे वचन में पाया जाता है। It's a very powerful verse, a very good verse. और बहुत ही सामर्थ से भरा वचन, बहुत ही अच्छा वचन ये है। We all should memorize this verse. हम सब ने इस वचन को याद कर लेना चाहिए। And do not be conformed to this world, but be renewed in your mind, be transformed in your mind by the renewal of your mind. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। Yeah. Romans 12:2. रोमियो 12:2। Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। See, whatever I say, nothing is automatic. It all happens with your partnership. जो भी मैं कहता हूं वो अपने आप से नहीं होता, ये तभी होगा जब आप अपनी साझेदारी या अपने सहयोग को करोगे। When we say God writes its law and puts its law in our minds, it doesn't mean that God is programming the robot so that the robot will act accordingly. No, no. और जब लिखा है कि परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे मन में डालता है, हमारे हृदय पर लिखता है, तो ये नहीं कि वो हमें किसी रोबोट की तरह एक हमारे अंदर प्रोग्राम डाल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। God puts a desire. परमेश्वर हमारे अंदर एक इच्छा डालता है। You have to pursue the desire. आपको इस इच्छा का उसके पीछे उसकी खोज करनी है। So who has to renew the mind? और किसको अपने मन को नया करना है? Yeah, mind you have to renew. और अपने मन को आपको नया करना है। Yeah, the government sometimes gives ration card to people. और कभी-कभी सरकार जो है वो लोगों को रेशन कार्ड देती है Or Aadhaar card. या आधार कार्ड देती है। Yeah, after 10 years, I had to go and renew the Aadhaar card. और 10 साल के बाद मुझे जाकर मेरे आधार कार्ड को फिर एक बार रिन्यू करना पड़ा। And the ration card, I'll have to go and renew. और राशन का जो कार्ड है उसे मुझे जाकर रिन्यू करना पड़ेगा। That government will not do. वो सरकार मेरे लिए नहीं करेगी, You have to do. आपको करना होगा। People who are receiving pension, they'll have to get the life certificate. They'll have to prove that they are alive. जिन लोगों को पेंशन मिलती है उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट पेश करना होता है, उन्हें ये साबित करना होता है कि वे जीवित है। So every year pension will not automatically be renewed. You have to produce the certificate. हर साल अपने आप कोई पेंशन आपकी रिन्यू नहीं होती, आपको वो जो प्रमाण पत्र है उसे जमा करना होता है। So if you don't do your part, you will not receive your pension. अगर आप अपना हिस्सा नहीं करोगे तो आपको अपनी पेंशन नहीं मिलेगी, You won't receive ration. आपको राशन नहीं मिलेगा। Yeah, you have to renew at the time of renewal. और जब रिन्यूअल की समय आती है तो आपको उसको रिन्यू करके लेना होगा। The same way, if you don't renew your mind, बिल्कुल वैसे ही अगर आप अपने मन को नया नहीं करोगे तो how can the law God has written will work? फिर जो व्यवस्था परमेश्वर ने लिखी है वो कैसे काम करेगी? Yeah, how can you have the desire? कैसे आपके अंदर वो इच्छा है? That's why God has given the word of God. इसी वजह से परमेश्वर ने हमें परमेश्वर का वचन दिया है। So the word of God will renew your mind. परमेश्वर का वचन आपके मन को नया करेगा। Then your mind will be transformed. फिर आपका मन नया हो जाएगा। You have to renew your mind. आपको आपके मन को नया करना है। I'll give an example. मैं एक उदाहरण देता हूँ। The devil has written with the death in your heart. शैतान ने मृत्यु की सहायता से आपके हृदय में लिखा है। Lust after women. स्त्रियों को देखकर लालसा करना, कुदृष्टि से देखना। And now with the old same practice, you are going and you are tempted to lust. अब उसी आदत की वजह से आप जब कहीं जाते हो तो आप प्रलोभित होते हो कि आप लालसा करो। But what do we read in Matthew chapter 5, 6, 7, Sermon on the Mount? पर हम मत्ती 5, 6 और 7 में क्या पढ़ते हैं? Do not lust. पहाड़ी उपदेश में हम पढ़ते हैं कि लालसा ना करो। If you lust, you are committing adultery. अगर तुम लालसा करते हो, स्त्री पर कुदृष्टि डालते हो, तो तुम व्यभिचार कर रहे हो। You bring that word और उस वचन को लाइए and renew your mind. और अपने मन को नया कीजिए। Yeah, it is not according. I'm not living in the Old Testament time. I'm not living according to my old life. I'm not living. मैं पुराने नियम के समय में नहीं जी रहा हूं, मैं अपने जीवन के पुराने तरीके से नहीं जी रहा। Yeah, we read in 1 Corinthians chapter 5 and verse 17. हम पहले कोरिन्थ 5 उसके 17 में पढ़ते हैं। 2 Corinthians chapter 5:17. माफ कीजिएगा, दूसरा कोरिन्थ उसका 5:17। Yeah, what does we read there? यहाँ हम क्या पढ़ते हैं? If any man be in Christ, अगर कोई मसीह में है तो he is a new creature. यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है। Old things are all passed away. पुरानी बातें बीत गई है। Yeah, that is we are made new. हम नए हो जाते हैं। But because of so many years of living in sin, it would have become a habit for us.
और क्योंकि इतने वर्षों से हम पाप में जी रहे हैं, वो हमारे लिए शायद आदत बन चुकी है। Now I have to say, I'm a new man. अब मुझे कहना होगा कि मैं तो एक नया व्यक्ति हूँ। I am dead to all old habits. मैं पुरानी सारी आदतों के लिए मर चुका हूँ। I should not lust with my eyes. मुझे अपनी आंखों से लालसा नहीं करनी है। I want to renew my mind. I should not lust because the word of God says, do not lust. मैं अपने मन को नया करना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि लालसा न करो। Flee youthful lust, 2 Timothy 2:22. और दूसरा तीमुथियुस 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। But instead, you join with those who are wholly seeking God so that you can seek righteousness, peace, and love. और उसके बजाय उन लोगों का साथ दो जो पूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोज रहे हैं, और ताकि उनके साथ तुम धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर सको। Yeah, somebody said, sign for victory. और किसी ने कहा कि विजय का जो एक चिन्ह दिखाया जाता है, Sign for victory is 2 Timothy 2:22. और विजय का ये जो चिन्ह है वो है 2 तीमुथियुस 2:22। Yeah, what do we read here? हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? Now flee from youthful lust जवानी की अभिलाषाओं से भाग, and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। Some people concentrate only on the half of the verse. कुछ लोग केवल उस वचन के आधे हिस्से पर ही ध्यान देते हैं। Yeah, they say, I have to flee from youthful lust. वे कहते हैं मुझे जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। But this verse also says, pursue righteousness. पर ये वचन ये भी कहता है कि तुम धार्मिकता की खोज करो। Yeah, pursue faith, love, and peace. विश्वास, प्रेम और धार्मिकता की और शांति की उसका पीछा करो। In which setup you have to seek? सॉरी बता। In which setup, which और background you have to seek? और किस पृष्ठभूमि में या किस परिस्थिति में आपको उसकी खोज करनी है? With those people who are having a pure heart, join with them so that you can seek this righteousness, peace, faith, and love. उन लोगों के साथ जिनका शुद्ध मन है, ताकि तुम इस धार्मिकता, विश्वास और प्रेम और शांति की खोज कर पाओ। Yeah, this is the word of God which renews our mind. ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे मन को नया करता है। That's why God's word says, meditate on the word of God. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन पर मनन करो। Meditation is happening in the mind. मनन जो है वो मन में होता है। When you keep on meditating, जब आप बार-बार मनन करते रहते हो, you have seen the cows and bullocks. और आपने गाय और बैलों को देखा है, Morning till evening, they go and eat grass. सुबह से लेकर शाम तक वे जाकर घास खाते हैं। But when you see them in the night, पर जब आप रात में उन्हें देखते हो, they bring up the past eaten food and they keep on chewing. और जो उन्होंने पहले खाया था खाना, उसी को वो ऊपर लाके बार-बार चबाते ही रहते हैं। When you chew the food, your body absorbs all the nutrients. और वो जब वे जुगाली करते हैं, जब आप उस खाने को चबाते हो तो उसके सारे जो पोषण के तत्व वो आपके अंदर जाते हैं। When you don't chew, most of the nutrients, it comes out, it is not absorbed by the body. और अगर आप उसे चबाते नहीं तो अधिकतर जो उसके पोषक तत्व है वो आपके शरीर में अंदर ही नहीं जाते। So in the same way, you are hearing lot of truths. बिल्कुल वैसे ही आप कई सत्यों को सुन रहे हो। You are reading lot of word of the Bible. आप बाइबल को काफी मात्रा में पढ़ रहे हो। It is like the cow eating lot of grass. और ये उस गाय के समान है जो बहुत सारा घास खाती है। It goes to one field and eats grass, वो एक खेत में जाकर घास खाती है, and another place it eats straw. किसी और जगह जाके वो और भूसा खाती है। Like that, you are going to the church, hearing the word of God. You are going to the YouTube, you listening to the messages. और वैसे ही आप कलीसिया में जाते हो, संदेश को सुनते हो, आप YouTube पर जाकर परमेश्वर के वचन को सुनते हो। You are hearing the messages from the Zoom. और Zoom पर आप कई संदेशों को सुनते हो। It's all like eating the grass, ये सब घास खाने के बराबर है, eating the straw. और उस भूसा को खाने के बराबर है। You stop with that, क्या आप वही रुक जाते हो क्या? then your mind cannot be renewed. फिर आपका मन नया नहीं हो सकता। What the cow and bullock do? और वो गाय और भैंस क्या करते हैं? They chew the food, already taken food. वे इस भोजन को चबाते हैं जो पहले से उन्होंने खाया, उसे फिर एक बार लेते हैं। So after listening to all the messages, you start meditating it. और सारे संदेशों को सुनने के बाद आप उस पर मनन करने लगते हो। While walking to your workplace, you can meditate. जब आप काम की जगह जा रहे हो चलकर, तो आप उस पर मनन कर सकते हो। While sitting idle, you can meditate. जब आप ऐसे ही खाली समय में बैठे हो तो आप उस पर मनन कर सकते हो। While taking bath, you can meditate.
जब आप ना रहे उस पर मनन कर सकते हो, Because when your body is doing so many activities, your mind can meditate. क्योंकि जब आपका शरीर बहुत सारे अलग अलग काम कर रहा है, आपका मन तो तभी मनन कर सकता है। Then spiritually, you are able to absorb all the nutritions. और आत्मिक तौर पर आप उन सारे पोषक के तत्वों को आपके अंदर समा सकते हो, You will become strong. आप बलवंत बन जाओगे। So, being renewed in the mind so that it can be transformed. और अपने मन को नया करना ताकि तुम्हारा मन नया हो सके, Do not be conformed to this world. और इस संसार के सदृश न बनो। That means don't walk according to what the world is writing in your mind. इसका मतलब उसके अनुसार मत चलो जो संसार तुम्हारे मन में लिखते जा रहा है। You know, worldly people, they write so many things in your mind. और संसार के लोग आपके मन में कई अलग अलग प्रकार की चीजों को लिखते हैं। They try to write, but you don't allow them to write. वे लिखने की कोशिश करेंगे, तुम उन्हें लिखने की अनुमति ना देना। They say money is very important. वे कहते हैं पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। Even if the children don't go to church, they love to go to school, tuition center, coaching center, this and that. बच्चे कलीसिया नहीं गए चलेगा, पर उनको स्कूल जाना है, कोचिंग सेंटर जाना है, ट्यूशन सेंटर यहाँ वहां जाना है। Who is writing that? कौन वो लिख रहा है? This world is writing that. ये संसार वो लिख रहा है। But do not be conformed to that. पर इस संसार के सदृश न बनो। That means don't act according to their instructions. इसका मतलब वो जो सिखाते हैं उसके अनुसार कार्य न करो। See, the conform, the word is, technically speaking, no, you take a lot of molten metal and pour it in a mold. When you take it up, the metal becomes like the mold. और उस सदृश बनना, वो जो शब्द है, अगर उसको तकनीकी रूप से देखा जाए तो आप जो गर्म धातु को लेकर किसी सांचे में ढालते हो ताकि वो उसके आकार को ले लेता है। The word of God, the world has got lot of molds. और संसार के पास भी कई अलग अलग सांचे हैं। And it has produced people according to the mold. और उसी सांचे के अनुसार उसने अलग अलग लोगों को उत्पन्न किया है। But God's word is another mold. पर परमेश्वर का वचन ये एक दूसरा सांचा है। The fear of God. परमेश्वर का भय, reverence for God, परमेश्वर के लिए आदर, listening to the truth, और सत्य को सुनना, obeying to the truth, और सत्य का अनुसरण करना, आज्ञा मानना, submission to authority, अधिकार के प्रति अधीन होना, staying in our boundary, हमारी सीमा के अंदर रहना, having pure eyes and pure thoughts. शुद्ध आंखें और शुद्ध विचार होना। Where do we find all these molds? ये सारे सांचे आपको कहाँ मिलते हैं? They are in the word of God. ये परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। They are in the church. ये कलीसिया में पाए जाते हैं। They are in the fellowship of people who are having a pure heart. उन लोगों की संगति में पाए जाते हैं जिन लोगों का एक शुद्ध हृदय है। That's why Romans 12:2 says, don't get conformed to this world. इसलिए रोमियो 12:2 कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो। Don't be molded according to the pattern of this world. और इस संसार का जो ढांचा है, जो साचा है, उसके अनुसार तुम न बनाए जाओ। Noah was like that. नूह ऐसा था। The whole world was mocking at Noah. और पूरा का पूरा संसार नूह को ठट्ठे में उड़ा रहा था। They never believed that rain is going to come. उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया कि बारिश आने वाली है। But what happened to Noah, his wife and his children? पर नूह, उसके पत्नी और उसके बच्चों का क्या हुआ? The 3 sons would have been tempted heavily. और उसके 3 बेटों को भारी मात्रा में प्रलोभन का सामना करना हुआ होगा। To believe what the worldly people are saying. और वे प्रलोभित हुए होंगे कि जो संसार के लोग कह रहे हैं उसी पर विश्वास किया जाए। But they never allowed themselves to be molded in the pattern of the world. पर उन्होंने कभी अपने आप को अनुमति नहीं दी कि उस संसार के साचे में वे ढाल दिए जाए। They knew their father was a godly man. वे जानते थे कि उनका पिता एक ईश्वरीय व्यक्ति है। They listened to the father, listened to the father. उन्होंने अपने पिता की सुनी। And they got molded according to the fear of God, the word of God. और परमेश्वर के भय और परमेश्वर के वचन के साचे में वे ढाले गए। What is the evidence that your mind is being renewed? और क्या ये सबूत क्या है कि आपका मन नया होते जा रहा है? You will be able to find out the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाओगे। That's the second part of Romans 12:2. और ये रोमियो 12:2 का दूसरा हिस्सा है। So that you may prove what is the good, acceptable and perfect will of God. ताकि तुम जो परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। Yeah, you are able to discern now. अब आप परख सकते हो। How? कैसे? Because your mind is renewed. क्योंकि तुम्हारा मन जो है वो नया होते जा रहा है। In your fellowship, there may be many people who are struggling to know the will of God. और आपके संगति में शायद कई लोग होंगे जो परमेश्वर की इच्छा को जानने का बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। Or a bunch of people who don't have a desire to do the will of God. या ऐसे लोगों का एक झुंड होगा जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है परमेश्वर की इच्छा करने की। But do you have a desire? पर आपके अंदर एक इच्छा है।
Who put the desire? वो इच्छा आपके अंदर किसने डाली? God. परमेश्वर ने। He has put the law into your mind. उसने उस व्यवस्था को आपके मन में डाला है। What is that law? वो व्यवस्था क्या है? Desire to do the will of God. परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की एक चाहत। The will, the perfect will of God, good will of God, acceptable will of God. परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की भली इच्छा, परमेश्वर की भावती इच्छा। I was thinking why Paul put those three words: और मैं सोच रहा था क्यों पौलुस ने ये 3 शब्द वहां लिखे? good, acceptable, perfect will of God. भली, भावती और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की। No, written one word, perfect will of God. और पौलुस केवल एक शब्द भी तो लिख सकता था कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। Yeah. Why he put three words? क्यों उसने वहां 3 शब्द इस्तेमाल किए? Suppose you read good will of God. अगर आप पढ़ोगे भली इच्छा, Suppose you miss that, acceptable will of God. अगर आप उस शब्द से चूक जाते हो तो परमेश्वर की Suppose you भावती miss इच्छा, that, perfect will of God. उससे भी चूक जाते हो तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा। Not missing the will of God, but trying to know. और परमेश्वर की इच्छा से चूकना नहीं, बल्कि उसको जानने से चूकना। Yeah, Lord, let me know what is your good will, what is your acceptable will, what is your perfect will. हे पिता, मुझे जानने की सहायता कर, तेरी भली इच्छा क्या है, तेरी भावती इच्छा क्या है, तेरी सिद्ध इच्छा क्या है। So that desire to know the will of God is the evidence that God has written something in your heart and mind. और परमेश्वर की इच्छा जानने की जब एक चाहत आती है, ये सबूत है कि परमेश्वर ने आपके मन और हृदय में कुछ लिख लिया है। That is the meaning of the 34th verse in Jeremiah 31, that और nobody need to teach you. और यिर्मयाह 31 अध्याय के 34 वचन का यही मतलब है कि किसी और को तुम्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। Suppose I am giving you the ice cream. अगर मैं तुम्हें एक आइसक्रीम दूं तो Did somebody teach you? You have to like the ice cream. You have to like the ice cream. So take and eat. क्या किसी ने आपको सिखाया क्या कि तुम्हें आइसक्रीम पसंद आना चाहिए, तुम्हें आइसक्रीम पसंद आना चाहिए, तो कोई आइसक्रीम दे तो लेकर खा लो? Nobody need to teach you. किसी को भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं। It is your nature that loves ice cream. ये आपका स्वभाव है जिसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। It's your nature that loves sweet. ये आपका स्वभाव है जिसको मीठा खाना पसंद है। The same way, when God writes in our heart, He changes our nature. बिल्कुल वैसे ही जब परमेश्वर हमारे हृदय में लिखता है, वो हमारे स्वभाव को बदलता है। So what do we do? और हम क्या करते हैं? We desire. हम इच्छा चाहत रखते हैं। We desire the will of God. हम परमेश्वर की इच्छा की चाहत रखते हैं। What is the will of God? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? It is knowing the mind of God. वो है परमेश्वर के मन को जानना। When you know the mind of God, जब आप परमेश्वर के मन को जान जाओगे, you can say that you know God. आप कह पाओगे कि मैं परमेश्वर को जानता हूं। That's the meaning of the 34th verse. और यही 34वें वचन का मतलब है। Nobody need to teach you. किसी को भी आपको सिखाने की जरूरत नहीं। So, like something is written in the DNA code of our gene, the spiritual DNA, God is writing the code. बिल्कुल जैसे कोई चीज आपके डीएनए में, आपके उस कोड में लिखी जाती है, परमेश्वर भी हमारे उस आत्मिक डीएनए को लिख रहा है। So when that is written, our life becomes heavenly life. जब वो लिखा जाता है तो हमारा जीवन स्वर्गीय जीवन बन जाता है। What is God writing in our DNA? परमेश्वर हमारे डीएनए में क्या लिखता है? The DNA of our mind and the DNA of our heart. हमारे मन के डीएनए में, हमारे हृदय के डीएनए में He puts heavenly code. वो Heavenly code. और वो उसमें एक स्वर्गीय कोड को लिखता है। Yeah, and first he wipes clean all that devil has written. और सबसे पहले तो वो सब चीज को मिटाकर साफ करता है जो शैतान ने लिखा है। That's why he gives a new heart. इसी वजह से वो एक नया हृदय देता है। And he writes something. और वो उस पर कुछ लिखता है। So now I have a desire. अब मेरे अंदर एक इच्छा है। I know what to do. मैं जानता हूँ क्या करना है। I know what is heavenly life. मैं जानता हूँ कि स्वर्गीय जीवन क्या है। I'm very confident. और मैं बहुत हियाव से भरा हुआ हूँ। Oh, thank God, I know everything. I can live this life. परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ये जीवन जी सकता हूँ। When I came to the fellowship, जब मैं संगति में आया, there were many books. कई किताबें थे। For example, one book will have 12 Heavenly Treasures magazine compiled together. और उदाहरण के तौर पर एक किताब जो होती थी उसमें 12 जो उस समय एक मैगजीन आती थी स्वर्गीय खजाने, उसके 12 जो अंक है उन सबको एकत्रित उसमें संगठित किया जाता था। So I sit and read. और मैं बैठकर पढ़ता था। Might be in 2 days or 3 days time I can complete all the 12 monthly issues in the book. 2 या 3 दिन में वो जो 12 अंक थे हर महीने का एक एक, वो मैं सब खत्म कर देता था। Do you know what thought came into my mind? क्या आप जानते हो मेरे मन में क्या विचार आया? Oh, these brothers who got revelation for 2 years, I have
got it in 2 days. और मुझे लगता था ये भाई जिन्हें 2 सालों में प्रकाशन मिला, मुझे तो 2 दिन में ही मिल गया। We may think like that. और हमें भी कभी-कभी ऐसा लग सकता है। Oh, I have now known what is new covenant. और अब मैं जान चुका हूं कि नई वाचा क्या है। God has written everything. परमेश्वर ने सब कुछ लिख दिया है। I know what is the good, perfect, and acceptable will of God. मैं जानता हूं कि परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा क्या है। But when I start doing it, I fail. पर जब मैं वो करना शुरू करता हूं तो मैं असफल हो जाता हूं। Then I find my heart is deceitful. फिर मैं देखता हूं कि मेरा हृदय तो धोखा देने वाला है। Paul was like that, writing in Romans chapter 7. पौलुस बिल्कुल ऐसा ही था जिसने रोमी 7 में ये लिखा, I desire good. मैं चाहता तो भला हूं, I want to do good, मैं भलाई करना भी चाहता हूं, but I do evil. पर मैं दुष्टता करते बैठता हूं। Some force is there, law of sin is working in me. कोई सामर्थ है, पाप की व्यवस्था मुझ में काम कर रही है। Though I know what is the perfect, good, and acceptable will of God, इसके बावजूद कि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की अच्छी भांति और सिद्ध इच्छा क्या है, I want to do, but something is preventing me. मैं करना तो चाहता हूं पर कोई चीज है जो मुझे रोक रही है। There is the law of sin and death. वो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था। Now, how to overcome that? अब उस पर कैसे विजय पाया जाए? That's why the second part of the new covenant comes. और वही नई वाचा का दूसरा हिस्सा आता है। That we read in the book of Ezekiel, chapter 36, और उसे हम पढ़ते हैं यहेजकेल उसके 36 अध्याय में, verses 26 and 27. उसका 26 और 27 वचन। Ezekiel, यहेजकेल chapter 36, उसका 36 अध्याय and verses 26 and 27. और 26 और 27 वचन। Yeah, I'll read it. Moreover, I will give you a new heart, and I put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। See, the first part is law or the word of God. और पहला हिस्सा जो है वो है व्यवस्था या परमेश्वर का वचन। The second part of the covenant is the Spirit of God. और वाचा का नई वाचा का जो दूसरा हिस्सा है वो है परमेश्वर की आत्मा। He says, I am giving you a new heart. और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय देता हूँ। It is like I am coming and telling you, I am giving you a new vessel or a clean vessel so that I want to pour milk. और मानो मैं आपको आकर कहता हूं कि मैं तुम्हें एक नया बर्तन या एक साफ बर्तन देता हूं ताकि मैं उसमें दूध को उंडेल सकूं। In the same way, when God wanted to give the Spirit, He wants to make sure that you have a new heart. बिल्कुल वैसे ही जब परमेश्वर आत्मा को देना चाहता था वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि आपका एक नया हृदय नया मन हो। Yeah, 27th verse, I will put my spirit in your heart. 27 वचन, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। For what purpose? किस कारण से? So that you can walk in my perfect, acceptable, and good will of God. कि तुम मेरे सिद्ध भावती और भले इच्छा के अनुसार चल पाओ। In Ezekiel chapter 37, you can read these two portions. और यहेजकेल उसके 37 अध्याय में आप ये 2 भाग पढ़ सकते हो। Ezekiel speaks the word of God. और यहेजकेल जो है वो परमेश्वर के वचन को कहता है। All the bones are brought together. और सारी हड्डियां एक साथ हो जाती है। Flesh is formed. और उस पर मांस बन जाता है। Skin is formed. और उस पर त्वचा बनती है। But there was no life. पर उसमें जीवन नहीं था। And then God says, Ezekiel, और फिर परमेश्वर यहेजकेल से कहता है, go and prophesy to the Spirit so that the Spirit can come upon these bones. और जाकर आत्मा से भविष्यवाणी कर ताकि आत्मा उस हड्डियों में आ पाए। Yeah, Ezekiel 37:9. और यहेजकेल उसके 37 अध्याय के 9वां वचन। And when he prophesied to the Spirit of God came into the bones. और जब उसने हिंदी में सांस लिखा, इंग्लिश में लिखा है, जब उसने आत्मा से भविष्यवाणी की तो परमेश्वर की आत्मा उन हड्डियों में आ गई। And they became alive. और वे जीवित हो गए। And stood firm on their feet. और वे अपने पांव पर खड़े हो गए। And became a mighty army. और वे एक बलवंत और बड़ी सेना हो गए। See, the Spirit of God comes. It doesn't mean he got life and still he is in ICU and lying down and tubes are going. No. It has become a mighty army, a soldier. और ऐसा संभव नहीं कि पवित्र आत्मा आएगा, जीवन आ गया और फिर भी वो आईसीयू में है, उसके नाकों में नलियां जा रही है। नहीं, वो जीवित हो जाता है, वो एक बलवंत सैनिक बन जाता है।
That is the work of the Spirit of God. ये परमेश्वर की आत्मा का काम है। In Genesis chapter 1, we read that the Holy Spirit was hovering on the surface of the waters. और उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो पानी के जल पर मंडराता था। And God spoke और परमेश्वर ने कुछ कहा, the word and spirit. वचन और आत्मा। And Jesus says in John chapter 6, और यीशु मसीह भी यूहन्ना उसके 6 अध्याय में कहता है, my words are spirit and life. मेरे वचन जीवन और आत्मा है। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. और आरंभ में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। And he dwelt among us. और वो हमारे बीच में आया। Yeah, let us make this word dwell in us. और आइए हम भी इस वचन को हमारे अंदर जीने दे। And his word is having spirit. और उसके वचन में आत्मा है। That's why John 7:38, 37, 38, 39 we read. और इसलिए यूहन्ना 7वां अध्याय उसके 37 से 39 वचन में हम पढ़ते हैं। Again I told that all these things are not automatic. और फिर एक बार जैसे मैं कहता हूँ, ये सारी बातें अपने आप से नहीं होती। We are living in the world where lot of automation is happening. हम एक ऐसे संसार में जीते हैं जहां बहुत सारी चीज ऑटोमेटिक या अपने आप से होने लग गई है। Press one key, things work. और आप एक कोई बटन दबा दो, अपने आप से चीजें काम करने लगती है। That is not going to work in our lives. और वो हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। We need to have the hunger and thirst. और हमें एक भूख और प्यास रखने की आवश्यकता है। Lord, I need the power of God. परमेश्वर मुझे पिता मुझे परमेश्वर की सामर्थ की आवश्यकता है। I need the Spirit of God. मुझे परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। I need the baptism of the Holy Spirit. और मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। When the Spirit comes, you shall receive power so that you can be witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and uttermost part of the world. जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे ताकि तुम मेरे गवाह बन पाओगे यरूशलेम, सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक। What is the witness? और वो गवाह क्या है? We are a group of people who want to live according to heavenly life. हम एक ऐसे लोगों का समुदाय या झुंड है जो एक स्वर्गीय जीवन जीना चाहते हैं। We don't want to follow the patterns of the world, but we want to follow the pattern of God. हम इस संसार के सदृश उनके मार्गों का अनुसरण नहीं करना चाहते, बल्कि परमेश्वर के जो मार्ग है उनका अनुसरण हम करना चाहते हैं। We refuse to live according to this worldly pattern. हम इस संसार के ढांचे के अनुसार जीने से इनकार कर देते हैं। The world and its fashion, they are going away. और संसार की जो पैटर्न है, उसके स्वरूप है, वो सब बीते जाते हैं। Yeah, there was a flood in a particular place. और किसी एक जगह में एक बाढ़ आई। And lot of valuable items and all were going in the flood. और बहुत सारे बहुमूल्य चीजें जो है वो बाढ़ में बह रहे थे। One man also was in the flood. एक व्यक्ति भी उस बाढ़ में था। He saw a big black bag. और उसने देखा एक बड़ी काली थैली बह रही है। He thought some treasure may be there. और उसे लगा उसमें कोई खजाना होगा। He wanted to take that. और वो उसे लेना चाहता था। So he went and he hugged it. और उसने जाकर उसे पकड़ लिया। And he was shocked. He was also hugged. और उसने वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि उसने उसे गले लगाया, उस चीज ने भी उसे गले लगाया। It was not a treasure, it was a bear. और वो कोई खजाना नहीं था, बल्कि वो एक भालू था। Yeah, it was also washed away in the flood, and it wanted somebody to help, and it caught hold of this man. और वो भालू भी उस बाढ़ में बह रहा था, वो खुद किसी की सहायता चाहता था और उसे ये व्यक्ति मिल गया। Both of them, no, they could not escape. They were washing in the flood. और दोनों के दोनों बच नहीं पाए, उस बाढ़ के साथ वे बह गए। That is the fashion of this world. और वही इस संसार के प्रतिरूप या फैशन है। You think that you can go and embrace the fashion of this world. और आपको लगता है कि आप इस संसार का जो फैशन है उसके पहनावे को आप गले लगा सकते हो। But before you embrace the fashion will embrace you. पर इससे पहले कि आप उसके गले लगाओ या उसे अपनाओ, वो आपको अपना लेगा। Then even if you want to come out, you cannot come out. It holds you tightly. और फिर इसके बावजूद कि आप बाहर निकलना चाहो, वो नहीं आने देगा, वो आपको बड़े जोर से जकड़ कर रखेगा। So the world and its fashions are perishing. और संसार और उसके जो फैशन है वो सब नाश होते जाते हैं। Yeah, I want to show that verse. मैं आपको उस वचन को दिखाना चाहता हूँ। Yeah, it is in 1 John. और वो पहले यूहन्ना में पाया जाता है। The world and its fashions, they'll be destroyed. और इस संसार और उसके जो फैशन है वो नाश किए जाते हैं। So let us be careful. और आइए हम बड़े सतर्क रहे। Yeah, I'll show the verse next time. Yeah. So we learned two things today.
और आज हमने दो चीजें सीखी, Two parts of the covenant. और उस वाचा के दो हिस्से। First, God writes in our mind and in heart, और सबसे पहले तो परमेश्वर हमारे मन में और हमारे हृदय में लिखता है, our mind being renewed by the word of God, और हमारा मन जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा नया किया जाता है, so that we have a desire to know God, to know His will, to know the perfect, good, acceptable will of God. ताकि हमारे अंदर एक इच्छा आती है परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर के इच्छा को जानने की, उसकी भली भांति और सिद्ध इच्छा को जानने की। In the process, we find that we don't have the power. और पर इसी प्रक्रिया में हम पाते कि हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है। The second part of the covenant, और उसी वाचा का दूसरा हिस्सा, God says, I will put my spirit. परमेश्वर कहता है मैं अपनी आत्मा को डालूंगा, Yeah, I will pour out my spirit on all flesh. The और last मैं things. और मैं अपनी आत्मा अंतिम दिनों में सब मांस पर, सब संसार पर उन डालूंगा। Joel has prophesied. और योएल ने इसकी भविष्यवाणी की है। And in the book of Acts, we read how the people were filled with the power of the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कैसे लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए। In Jerusalem, in Samaria, in Cornelius' house, and in Ephesus, many places, the Spirit of God fell down. यरूशलेम में, समरिया में, कुरनेलियुस के घर में और इफिसुस में कई जगह हम देखते हैं प्रेरितों में कि परमेश्वर की आत्मा उतर आई। Even now, there are many, many places where people are being anointed and filled with the power of the Holy Spirit. आज भी कई कई जगह है जहां लोग अभिषेक किए जाते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे जाते हैं। It will take away all your discouragement. वो आपके सब निराशा को निकाल लेगा। Like the dry bones received life, जैसे उन सूखे हड्डियों ने जीवन को प्राप्त किया, the hopeless situation, hope will come. असहाय परिस्थिति में आशा आएगी, निराश परिस्थिति में आशा आएगी, And you will receive a new strength. और आप एक नई सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। We read in Isaiah chapter 40 and verse 31. हम यशायाह 40 उसके 31 में पढ़ते हैं, Those who wait on the Lord shall renew their strength like eagles, and they will fly high like eagles. जो प्रभु की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। In this evil world, God wants us to live a heavenly life. That is the life of eagle flying high. और इस दुष्ट संसार में परमेश्वर चाहता है कि हम एक शुद्ध जीवन जिए, वो उस उकाब का जीवन है जो ऊंचा उड़ता है। May God help us to live this wonderful life. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस अद्भुत जीवन को जी पाए। Shall we a minute close our eyes and commit ourselves to God? और क्या हम And thank God. एक मिनट के लिए हम अपने आंखों को बंद करके अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। Our dear Heavenly Father, हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, we thank you, Lord, for the wonderful new covenant. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अद्भुत नई वाचा के लिए। We pray, Lord, that this new covenant will be fulfilled in every one of our lives. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये जो नई वाचा है ये हम में से प्रत्येक के जीवन में पूरी हो जाए प्रभु। We want our mind to be filled with the word of God and renewed, Lord. हम चाहते हैं कि हमारा मन जो है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा भर दिया जाए और वो नया हो जाए प्रभु। We want every one of us, Lord, to be anointed by the power of the Holy Spirit of Father. हम चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारा अभिषेक हो। Give us, Lord, a desire and a hunger and a thirst for it. हमारे लिए, हमारे अंदर एक इच्छा, उसकी भूख और प्यास तू दे प्रभु। We don't want to stop asking until we receive it, Lord. हम तब तक मांगना नहीं छोड़ना चाहते जब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर लेते प्रभु। Put that desire in the hearts of the people, Lord. वो इच्छा तेरे लोगों के हृदय में डाल प्रभु। We need power, Lord. हमें सामर्थ की जरूरत है प्रभु। We need power from above, Lord. हमें ऊपर से सामर्थ चाहिए प्रभु। It is your promise, Lord. वो तेरा वायदा है प्रभु। We are asking, we are seeking, we are knocking, Lord. हम मांग रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम खटखटा रहे हैं प्रभु। Fill your people, Lord, with the power of the Holy Spirit. तेरे लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे प्रभु। Thank you for all the people who are hearing this message. और सब लोगों के लिए धन्यवाद जो इस संदेश को सुन रहे हैं। Bring a transformation in our lives, Lord. हमारे जीवन में एक बदलाव, एक रूपांतरण ला प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।